students, how are you? I hope you have revised part 1 of this chapter, haloalkanes and arenes. Now today I'm starting second part, yani part 2 of chapter haloalkanes and arenes. In the previous chapter you have done the method of preparations. Method of preparation हमने वहाँ पे किया था. Classification we have done there. Now today we are starting physical property and we'll do chemical properties as well in this session only. So I'm starting with the physical properties first. You have to understand reasoning. Reasoning is important one. You have to focus here. If you'll complete the chapters simultaneously with me, you focus have to be here in this lecture only. तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरेन्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर इन स्टेट. तो आपको याद रखना है एल्काइल हैलाइड्स जनरली दे आर कलरलेस व्हेन दे आर प्योर. हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड they develop color when exposed to light. Alkyl halides are colorless when pure in state. Bromides and iodide, they develop color when exposed to light. Many volatile halogen compounds have sweet smell. Volatile, those who are able to make their vapors. तो volatile halogen compounds they have the sweet smell. तो specifically अब हम कर लेते हैं one by one. तो first I'll focus on your melting and boiling points. तो first I'm talking about methyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride and some chlorofluoromethane. These are the lower members basically. They are gases at room temperature. So your point of focus is the lower members. Examples: methyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride. Some of the other they are gases at room temperature. The lower members इनके gases होते हैं room temperature पे. The other haloalkanes, if we'll discuss the other halogen up to 6 C18 तक. अगर कार्बन 18 तक है तो then there will be colorless sweet smelling liquids. The lower one they are gas at room temperature. The haloalkanes up to C यानी carbon 18 number they are sweet smelling liquids. While higher than that यानी उससे भी बड़े molecules अगर यहाँ पे हैं हमारे पास तो the members they are colorless solids. Lower one gas at room temperature up to 18 they are colorless sweet smelling liquid, while higher than that they are colorless solids. Are we okay? Now we'll move ahead with some more information. As we have already learned, the molecule of organic halogen compounds they are polar in nature. पोलर का मतलब हमने नेचर पढ़ा था वहाँ पे. इससे पहले वाली जो क्लास था हमने किया था ये कि जो हमारा नेचर है कार्बन और कार्बन एक्स बॉन्ड ये हमारा कैसा है नेचर में. ये हमारा नेचर में पोलर है. ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज द हायर मॉलिक्यूलर मासेस आर कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन may be dipole interaction or van der Waals they are stronger in halogen derivatives. Why so? क्यों ऐसा है? बिकॉज नेचर कैसा है सी एक्स बॉन्ड का. ये नेचर आपका जो है वो कैसा है पोलर है. तो पोलर है तो चार्जेस हैं वहां पे. चार्जेस अगर है वहां पे तो उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसकी हम बात कर रहे हैं दिस इज मोर एंड स्ट्रॉन्ग इन द हैलोजन डेरिवेटिव एज कंपेरेटिव टू द हाइड्रोकार्बन. That is why the boiling point of chloride, bromide and iodide are considerably higher than those of hydrocarbons of the comparable molecular masses. जैसे एग्जाम्पल में लिख देती हूँ यहाँ पे. If I'm talking about CH3, CH2,
और मैंने बात की यहाँ पे CH3। इसका हेलो डेरिवेटिव ये रहा आपके पास CH3, CHCl और ये आपका हुआ CH3। दोनों में से इफ आई कंपेयर, मुझे क्या कंपेयर करना है, किसमें मोर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो फॉर श्योर वो यहाँ पे है एज कंपैरेटिव टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन ऑफ दिस हैलोजन मॉलिक्यूल। दैट इज वाई ड्यू टू दिस ओनली, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, चाहे वो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है आपका यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग हैलोजन डेरिवेटिव्स, दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट of the chloride bromide iodide is higher than their parent molecule। तो ये बात हो गई इसकी बॉइलिंग पॉइंट की। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि रीजन यहां पर है देयर, व्हाट इज द रीजन हियर, रीजन इज द पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड विच इज नॉट प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन। नाउ विल मूव अहेड। द attractions got stronger as the molecule get bigger in size। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे आपका साइज मॉलिक्यूल का बढ़ रहा है उसमें दे हैव मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज इन ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज इन ऑर्डर। क्यों ऐसा है, बिकॉज with increase in size, जैसे साइज आपका बढ़ रहा है, the mass of halogen atom, the magnitude of van der Waals force also increases। फाइन, यहाँ तक याद रखे, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ने के साथ साथ van der Waals फोर्सेस भी बढ़ रहे हैं, और van der Waals फोर्सेस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, और ऐसा होने से आपका क्या यहाँ पर आ रहा है बेटा, जो आपने मॉलिक्यूल में देखा है, the boiling point, ये रहा, the boiling point of the alkyl halide decreases in order। तो सबसे ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल और ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल आपका है, तो रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ साइज। Larger the size, larger will be the van der Waals forces, and more will be the forces, then definitely more will be the energy required to break any bond। Now we have given a few example here, the comparison of boiling points of some of the alkyl halide। तो ये आपका है यहाँ पे alkyl halide, और जिसमें आपका ये गैसेस हैं आपको नजर आ रहा है, और ये आपका क्लोराइड, ये रेड वाला जो आपका है, ये उसके बाद आपका है यहाँ पर ब्रोमाइड्स, एंड लास्ट में आपका आयोडाइड है। तो ये तीनों का देखिए कंपैरिजन में आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या यहाँ पर है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर ही आपका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमें नजर आ रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक हेलो एल्केन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। क्यों, ऐसा क्यों है? बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक फॉर्म, यानी आइसोमेरिक कौन सी फॉर्म्स होती हैं, हम जानते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर जो आपका स्ट्रक्चर है वो वेरी करेगा, जबकि आपका फॉर्मूला सिमिलर ही होगा उनका, यानी नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स दे आर सिमिलर देयर। तो उसमें ऐसा क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक आपका जो हेलो एल्केन है वो डिक्रीज करता है अगर ब्रांचेस बढ़ जाती हैं। यानी अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ फॉर श्योर एक ब्रांच मुझे नजर आ रही है, इस फॉर्म में है, और यहाँ आपका डेफिनेटली मैक्सिमम ब्रांचिंग है। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आपका 375 है, ये 364 और ये 346 आपका हुआ। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका ये डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ की ब्रांचिंग। अब उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऐसा होता क्यों है। जैसे जैसे आपका ये बॉइलिंग आपका ब्रांचेस बढ़ता जाएगा, तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या हो जाएगा बेटा, ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल ये एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया, ये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, और ये आपका कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट जैसे हो जाएगा आपका, उस कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल की वजह से जो van der Waals फोर्सेस हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो अगर van der Waals फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है जो आपका आइसोमेरिक हेलो एल्केन ये इंक्रीज इन ब्रांचिंग, जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका वो डिक्रीज कर जाएगा विद द नंबर ऑफ ब्रांचिंग।
आई होप इट इज क्लियर नाउ कि वंडरवॉल फोर्सेस कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल का हमेशा कम होगा क्योंकि सरफेस एरिया इसमें कम हो जा रहा है वहां पर. नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन आर वेरी नियरली सेम. तो बॉइलिंग पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं फिर से? आइसोमर्स की. लेकिन अब आइसोमर्स किसके हैं हमारे पास? डाइहेलोबेंजीन. दे आर नियरली सेम. हाउएवर द पैरा आइसोमर are higher melting point as comparative to their ortho and meta isomer. इसकी भी रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग में याद रखिए यहाँ पे जो आपका पैरा आइसोमर्स है बच्चे वो ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स that fits in crystal lattice better as comparative to ortho and meta. I'll show you with the help of diagram. ये आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे ब्रांचिंग इंक्रीज करने के साथ में आपका क्या हो रहा है? वन वॉल फोर्स कम हो रहा है. चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. देखिए ये उसका ऑर्थो डेरिवेटिव है, ये रहा आपका, ये आपका मेटा डेरिवेटिव है और ये आपका पैरा डेरिवेटिव है. यहाँ पे ये मेटा है आपका और ये ऑर्थो डेरिवेटिव है. तो अगर इनका कंपैरिजन करें तो वो कहते हैं कंपैरिजन में इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर. ऑलमोस्ट सिमिलर. देखिए ये आपका बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है लेकिन ड्यू टू सिमेट्री दिस फिट्स मोर बिकॉज पैरा है आपका तो क्रिस्टल लेटिस में इसका फिटिंग बेस्ट है. तो वही लास्ट पैराग्राफ में बताया आपको. पैरा आइसोमर्स are higher melting point as comparative to their ortho and meta isomers because the symmetry of para isomers the fits in crystal lattice better as comparative to ortho और meta और वही हमें डायग्राम में यहाँ नजर भी आ रहा है आपका. तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ये देखिए यहाँ पर ये 256 है, ये आपका 249 और यहाँ ये आपका हो जाता है 323. दैट मीन्स इसको सबसे ज्यादा बिकॉज इसकी फिटिंग जिसका क्रिस्टल लेटिस जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट और जितना ज्यादा परफेक्ट होगा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो डेफिनेटली ये आपका पॉइंट्स या आपका टेम्परेचर ज्यादा आपको यूज करना पड़ेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा आ जाएगी वहां पर. तो दिस इज क्लियर नाउ. नाउ लेट्स फोकस ऑन द डेंसिटी. डेंसिटी कैसे वेरी करता है आपका? तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरो एल्केन की. मैंने सिर्फ क्लोरो एल्केन बोला है अभी, आपको ब्रोमो आइडो या फिर पॉलीक्लोरो के बारे में कोई बात करना नहीं है अभी. तो जो आपका क्लोरो एल्केन है बेटा दे आर जनरली लाइटर देन वाटर. क्लोरो एल्केन ओनली लाइटर देन वाटर. रेस्ट ब्रोमो आइडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव. क्लोरो में भी पॉलीक्लोरो अगर है मोर देन 1 2 क्लोरो है यानी 2 से ज्यादा है तो वो हाइड्रोकार्बन हैवियर देन वाटर होगा. द डेंसिटी आर इन ऑर्डर. डेंसिटी आपका ये रहा, हमने फिर से यहीं से वही फॉलो किया है आयोडीन टू क्लोरीन. द डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर एंड द एटॉमिक मास ऑफ द हैलोजन एटम. तो डेंसिटी कैसे इंक्रीज होगा? नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन अगर इंक्रीज होता जाएगा तो डेंसिटी इंक्रीज होता जाएगा. लेकिन अब बात करते हैं एराइल हैलाइड की. वहां पे क्या है आपका? जो एराइल हैलाइड है दे आर हैवियर देन वाटर और उनका डेंसिटी पैटर्न सबसे ज्यादा है आपका एराइल आयोडाइड देन ब्रोमाइड एंड देन एराइल क्लोराइड. इस तरह से आपका डेंसिटी वेरी करता है. अब डेंसिटी के साथ में आगे बढ़ जाती हूँ. सॉलिबिलिटी. सॉलिबिलिटी में क्या होगा? सॉलिबिलिटी में देखने से तो लगता है कि नेचर कैसा है बॉन्ड का? नेचर बॉन्ड का पोलर है तो उसको सॉल्युबल होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है. ये आपके स्प्रिंग ये दे हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करें दे ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. बहुत कम वाटर सॉल्युबल है जबकि एराइल हैलाइड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट रियली मिसिबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. चलिए क्यों ऐसा है एक बार इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ. Haloalkanes to dissolve in water, तो energy is required to overcome the attraction between haloalkane molecule and the break of hydrogen bond between water molecule. right है? तो सबसे पहले जो आपका बॉन्ड है वो ब्रेक होना है haloalkane का भी और water molecule को भी. and less energy is released by new attractions are set up. यानी न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बनते हैं तो उसका एनर्जी उतना ज्यादा नहीं है. कितना नहीं है?
कि बिटवीन हेलो एल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल एज दीज आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर. नए बॉन्ड कब फॉर्म होते हैं? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो बाय द न्यू कॉम्बिनेशन और न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि इस केस में नहीं अवेलेबल है. एज अ रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन इन वाटर इज वेरी लो. हेलो एल्केन्स टेंड्स टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. वहाँ डिसॉल्व हो जाते हैं जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं आपके, चाहे आपका एल्कोहल हो या फिर आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, वहाँ जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे. क्यों ऐसा है? बिकॉज जो नए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस हैं बिटवीन हेलो एल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दे हैव मच एंड द सेम स्ट्रेंथ एज दे वर ब्रोकन इन द सेपरेट. जो उनके पहले ऑलरेडी स्ट्रेंथन बॉन्ड थे उनसे ज्यादा स्ट्रेंथन बॉन्ड बन जाएंगे तभी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है. किसके साथ में? वाटर के साथ में. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स वाटर में बहुत ही कम है और एराइल हैलाइड बिल्कुल इनसॉल्युबल है आपका वाटर के साथ में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में दोनों ही मिसिबल है या फिर सॉल्युबल है. नाउ स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग केमिकल रिएक्शंस. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं किससे? केमिकल रिएक्शन से हम लोग शुरू करते हैं. केमिकल रिएक्शंस रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितने भी आपके नेम रिएक्शंस या फिर आपके कन्वर्जन्स बनेंगे वो सब आपके इसी पार्ट से बनने वाले हैं. यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन दिस पार्ट एज वेल. रीजनिंग है, वी हैव मैकेनिज्म एज वेल अबाउट द रिएक्शंस. तो मैं आप सबसे पहले आपके लिए शुरू करती हूँ यहाँ पर रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स. ये हम शुरू करते हैं. वी हैव 3 कैटेगरी हियर. The first is the nucleophilic substitution, second elimination reaction, and the third one is the reaction with metals. So one by one we'll cover all 3 types. So first I'm starting with nucleophilic substitution reaction. Really very important and one question for sure expected from this part of the chapter. चलिए शुरू करते हैं. न्यूक्लियोफिलिक, जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यहाँ रिलेटेड है. न्यूक्लियोफाइल, अब आप देखते हैं कैसे वो रिएक्शन में हेल्प करता है और कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विथ हेलो एल्केन. हेलो एल्केन ऑब्वियसली यहाँ पे रिएक्टेंट है बिकॉज नाउ वी आर स्टडीइंग केमिकल रिएक्शंस. Chemical reactions, when react with this, what will happen? When react with that, what will happen? We are going to cover this. Substrate, they're having a partial positive charge on the carbon atom bonded to halogen. ये आपको पता है कि जितने भी आपके हैलोजेंस, यानी जो मैंने आपको बताया था, ये तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैलोजन पर आपका नेगेटिव है और ये रहा आपका कार्बन जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ है. एंड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड हैलोजन एटम विच इज कॉल्ड द लिविंग ग्रुप हियर. तो ये हैलोजन आपका यहाँ से बाहर निकलने वाला है. डिपार्ट एज इन हैलाइड आयन, मे बी Cl, मे बी Br, मे बी I. Since the substitution reaction is initiated by nucleophile, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, बिकॉज वो न्यूक्लियोफाइल है, उसका अट्रैक्शन टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज होगा. दैट इज वाई एक टर्म दिया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन यानी इस केस में ये जो आपका हैलोजन लीविंग ग्रुप, इसकी मैं बात कर रही हूँ, ये बाहर जाएगा और whatsoever is न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन. आगे पूरा डिटेल मैकेनिज्म, चलिए हम उसकी तरफ चढ़ते हैं. ये आपका न्यूक्लियोफाइल है बेटा रिएक्शन में. दिस इज न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पर दिस कार्बन विद स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर एंड ये जो आपका हैलोजन है इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है. रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कहां पर? बिकॉज ये इस नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस की वजह से यहां पर अटैक करेगा आपका. और जैसे एसोसिएशन बनेगा, ये जो आपका Cl आपका X है, ये आपका लीव कर जाएगा लिविंग ग्रुप पे, ये हैलाइड आयन. तो ये आपका हैलाइड आयन है और ये आपका रिएक्शन प्रोडक्ट हो गया. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है आपका.
It is one of the most useful class of organic reactions of alkyl halide in which halogen is bonded to sp3 hybridized carbon. हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, तो halogen here associated with this sp3 hybridized carbon, and the product formed by the reaction of haloalkane with some common nucleophile given in this table. We should know this reaction product में क्या फॉर्म करेगा. तो कॉमन RX ये आपका एल्काइल हेलाइड हो गया. ये आपका न्यूक्लियोफाइल है फॉर श्योर. दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस C carbon positive charge. This will give us a product, and this is halide with the negative charge over here. नाउ मैं आपको टेबल एक बार दिखा देती हूँ, कौन सी टेबल और इससे कौन सा आपका प्रोडक्ट बनने वाला है. तो यहाँ देखिए रिएजेंट NaOH या KOH ये आप ले रहे हैं यहाँ पे. इस NaOH और KOH की अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपकी, तो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोफाइल यानी अटैकिंग OH होगा इसका. सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट RNU में ROH यानी अल्कोहल बन जाएगा, एंड द क्लास ऑफ द मेन प्रोडक्ट इज अल्कोहल हियर. बीच बीच में से मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपका NaI यहाँ पर आएगा, ये आपका I नेगेटिव है, देन प्रोडक्ट बनेगा आपका एल्काइल आयोडाइड, ये आपका ग्रुप नेम हो गया. ऐसे ही आपका नीचे तक पूरी जितनी भी टेबल के ऐसा प्रोडक्ट दिया, आपको ये सबका सब्स्टिट्यूशन यानी आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है और उसकी प्रोडक्ट क्या बन रही है, यू शुड नो दिस. लेकिन इसमें से कुछ आपके एक से ज्यादा, जैसे देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है नाइट्राइल साइनाइड, लेकिन साथ में आइसोसाइनाइड भी आपको दिख रहा है. इसी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा क्यों है, चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सब में नहीं होगा बच्चों, ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी वाले कंपाउंड्स में ऐसा होगा. ऐसा क्यों होगा, चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको. यहाँ पे कुछ ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स की हम बात करें, लाइक साइनाइड या नाइट्राइल, दे आर पोजेस टू nucleophilic centers, and that is why we've given a term this called the ambident nucleophiles. ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिसमें एक से ज्यादा आपके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो या रिएक्शन सेंटर हो. एक्चुअली जो आपका साइनाइड ग्रुप है, इट्स एन हाइब्रिड ऑफ टू कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. कौन कौन सी हैं आपकी, ये देखिए CN. तो दिस टाइम यहाँ पे आपका रिएक्शन सेंटर में आपका C भी है और N भी है, यानी कार्बन भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और नाइट्रोजन भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, बिकॉज दोनों रिएक्शन सेंटर्स हैं, दोनों इंटरएक्सचेंज प्रॉब्लम से. तो आपको इनको यहाँ बोलेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स. दोनों प्रोसेस पॉसिबल हैं, लेकिन क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये देखिए आप यहाँ पर. लिंकिंग थ्रू कार्बन, अगर कार्बन से बॉन्ड बनता है, दैट इज रिजल्टिंग इन एल्काइल साइनाइड. जो प्रोडक्ट है आपका वो एल्काइल साइनाइड यानी ये वाला आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा बेटा. लेकिन अगर रिएक्शन सेंटर नाइट्रोजन है, यानी जो आपका नाइट्रोजन एटम, इट्स लीडिंग टू आइसोसाइनाइड. आप जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो आपका क्या करेगा यहाँ पर, आइसोसाइनाइड. यानी कार्बन अगर सेंटर है देखिए तो ये आपका होगा, और अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा है तो आपका आइसोसाइनाइड यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इस केस में. चलिए, सिमिलरली द नाइट्राइट आयन दे ऑल्सो रिप्रेजेंट सेम कंडीशन. कैसे, दोनों पॉइंट्स आपके पास है सेम. इन दिस कंडीशन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों लिंकेज फॉर्म कर सकते हैं. दिस पॉइंट ऑफ लिंकेज, द लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन, द रिजल्ट इन एल्काइल नाइट्राइट, while linkage with nitrogen will give the nitroalkane. तो ये प्रोडक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अगर साइनाइड CN ग्रुप में कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो क्या हो जाएगा आपका साइनाइड ग्रुप, और अगर नाइट्रोजन करता है तो वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आइसोसाइनाइड. सेम अगर हम बात करते हैं किसकी, नाइट्रो कंपाउंड की, तो वहां पर क्या है आपका नाइट्राइट आयन में दो सेंटर्स हमें नजर आ रहे हैं, NNO वहां पर. लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन आपको एल्काइल नाइट्राइड्स देगा, और नाइट्रोजन के साथ में लिंकेज में नाइट्रो एल्केन मिल जाएंगे. ये स्पेसिफिक केस थे तो मैंने दोनों आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं मैकेनिज्म कैसे रिएक्शन होती है. और ये
वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप बहुत अच्छे से करिए क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम। यू शुड अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स अब से लेके और हम ऑप्टिकल रिएक्टिविटी तक इसको इन्वॉल्व करके चलने वाले हैं। द मैकेनिज्म में दिस रिएक्शन इज फाउंड टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स, ठीक है, टू डिफरेंट मैकेनिज्म में सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाई मॉलिक्यूलर यानी SN2 रिएक्शन, एंड ऐसे ही आपका यहां पर आएगा SN1। तो हम SN2 से पहले शुरू कर लेते हैं कि SN2 रिएक्शन होता कैसे है। द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एल्काइल हैलाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, आपका OH आयन, इससे यील्ड क्या मिल रहा है आपका, इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मिथेनॉल बन रहा है यहाँ पे, और क्लोराइड एज अ लीविंग ग्रुप आपका अलग हो जाता है यहाँ से। That follows सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, याद रखिएगा आप। क्यों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि हम ये जानते हैं और केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ भी चुके हैं कि आपका अगर रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड करता है, यानी दोनों रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, तो वो आपका हो जाता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, वो यहाँ पर ये है। तो रेट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, दोनों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा रिएक्शन में, रिएक्शन में ये आपका यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया अब आपका, किसके साथ जल्दी से बॉन्ड बनाया, यहाँ जो प्रेजेंट आपका कार्बन है सेंटर में, इसके साथ उसने बॉन्ड बनाया। अब दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, ये जो आपका है वो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन आपका स्टेज है। इस केस में OH का देखिए पार्शियल एसोसिएशन ये दिखा रहा है यहाँ पर, ये जो एसोसिएशन है ये पार्शियल एसोसिएशन है, और पूरी तरह से जो Cl है उसने आपका लीव भी नहीं किया है अभी। लेकिन क्योंकि जो ये कार्बन प्रेजेंट है इसकी वैलेंसी 5 तो हो नहीं सकती है, 1 2 3 4 5, तो उस केस में ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होके आपका रह जाएगा, जबकि जो Cl है वो यहां से अलग होकर आपका क्लोराइड आयन के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी दिखाया है कि ये देखिए ये जो आपका है ये OH ग्रुप है यहाँ पे, और फिर से ये क्या आपका है यहाँ पे, ये आपका है यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड। अब इसमें क्या है, ये आपका कहां पर अटैक करेगा, ओब्वियसली ये यहां पर अटैक करेगा। तो इसने जैसे ही अटैक किया तो देखिए आपका इंटरमीडिएट स्टेट बन गया यहाँ पर, ये पार्शियल एसोसिएशन दोनों तरफ से, और उस केस में ये यहाँ से निकल जाएगा। ये देखिए ये प्लस के साथ में आपका ये आपका हेलोजन आयन बन गया यहाँ पर। तो ऐसे आपका जो ये आपका SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म याद रखिए, ये हमेशा आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आएगा। ये आपका एक ही स्टेप में देखिए कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन। यहाँ पर इंटरमीडिएट ये फॉर्म बनेगी आपकी, इतना सब कुछ याद रखने हैं, और हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इन ईयर 1937 एडवर्ड डेविस हेगिस इन्होंने क्या किया, एंड सर क्रिस्टोफर एनकोल दे प्रपोज्ड मैकेनिज्म फॉर एन SN2 रिएक्शन, हमें इनसे मिला, राइट। अब देखते हैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम रिएक्शन SN2। इट्स अ बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, and the incoming nucleophile they interact with the alkyl halide, that's causing the carbon halide bond breaking while forming a new carbon OH bond. ये सब मैं आपको वैसे बता ही चुकी हूँ। These two processes they are take place simultaneously। simultaneously क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए simultaneously ये ऐड भी हो रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ से डिटैच भी हो रहा है, तो दोनों प्रोसेस आपकी simultaneously यहाँ पर ये हो रही हैं, दोनों प्रोसेस आपके साइमल्टेनियस हो रही है। एंड बॉन्डिंग विद द 5 एटम्स therefore is an unstable state. Okay, since this reaction required approach of the nucleophile to the carbon that bearing the leaving group, leaving group मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं Cl या Br की, the presence of bulky substituent or near on or near the carbon atom having a ड्रोमेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट। उसने बोला, देखिए क्या बोलने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये जो आपका ये H प्रेजेंट है, H की जगह अगर यहाँ बल्की ग्रुप्स होंगे यानी बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप होंगे, तो इसका जो अप्रोच अभी इतना आसान है वो इतना आसान नहीं होगा, और वो इस रिएक्शन रेट को थोड़ा सा स्लो कर देगा। देखिए वही बता रहे हैं वो,
द सिंगल इट इज साइमल्टेनियसली यहाँ पर आपका प्रोसेस में आएगा एज द रिएक्शन प्रोसेस एंड द बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड अ कार्बन स्टार्ट फॉर्मिंग द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द लिविंग ग्रुप इज वीकन. वो धीरे धीरे वीक अगर नहीं होगा तो वो डेफिनेटली प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाएगा कभी भी. एज दिस हैपन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम अंडरटेकिंग इनवर्ट much same way as the umbrella turned inside out when caught in a strong wind, while the leaving group is pushed away, and this process is called inversion of configuration. Important one, this is called inversion of configuration, which is also and commonly known as the Welton inversion. क्या बताने की इन्होंने कोशिश की है, इन्होंने बोला देखिए ऐसा होता है कि आपका ये वाला जो ग्रुप है कहां पर अटैच्ड है, आपका राइट हैंड साइड आपका क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है. सेम हियर राइट हैंड साइड, मैं इसको भी ले सकती हूँ यहाँ पर. अब इस केस में क्या हुआ, क्या सेम इसी साइड में या फिर इसी साइड में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्या हुआ, जो प्रोडक्ट बना आपका तो अटैचमेंट कहां पर हुआ, इसकी ऑपोजिट साइड, सेम एज आपका OH यहाँ पे लगा. दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. और उसका कंपैरिजन किया कि अम्ब्रेला, जैसे आप खोलते हो अम्ब्रेला और अगर बहुत तेज हवा आ जाती है तो अम्ब्रेला क्या हो जाता है, वो बाहर की तरफ खुल जाता है ना ऊपर, यानी आपकी तरफ टर्न होने की जगह ऑपोजिटली टर्न हो जाता है. दैट काइंड ऑफ इन्वर्जन इज ऑल्सो नोन एज द दिस वेल्टन इन्वर्जन. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी को थोड़ा सा और मैं आपको कराती हूँ यहाँ पर. सिंपली एल्काइल हैलाइड मिथाइल हैलाइड दे रिएक्ट मोस्ट रैपिडली इन SN2 रिएक्शन. क्यों, उसका रीजन बता दिया, क्योंकि यहाँ पे छोटे ग्रुप प्रेजेंट हैं. अब हम प्राइमरी की बात करें तो हम इसी की बात कर रहे हैं ना. यहाँ पे जो ग्रुप है वो बल्कि ग्रुप नहीं है. वो कैसे ग्रुप हैं आपके, वो आपके छोटे ग्रुप हैं यहाँ पे. चलिए देखते हैं. जिसकी वजह से SN2 रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत तेजी से होती है बिकॉज देयर आर ओनली 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम्स. इंस्टेड ऑफ दिस टर्शरी हैलाइड the least reactive because the bulky group they hinder, वो रोक देंगे, they approach the nucleophile and thus the order of reactivity is this for SN2 reaction we're talking about. Primary halide सबसे तेजी से, then secondary and the tertiary halide. कैसे ऐसा कर रहे हैं, चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा समझाती हूँ कि क्यों वो हिंडर करेगा इस प्रोसेस को. ये रहा आपका स्टेरिक हिंड्रेंस. न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए, अगर ये वाले हम ग्रुप की हम बात करें तो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, वो अटैक कर ही रहा है, तो उस केस में यहाँ पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है, ये देखिए ये छोटे ग्रुप हैं और इसको आराम से बिना किसी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है तो आपका डेफिनेटली खुद कैसा हुआ, नेगेटिव चार्ज के साथ है, लोन पेयर के साथ है, तो ये आपका यहाँ पर आने के लिए इसको स्पेस प्रॉपर चाहिए. लेकिन अगर इसको रिप्लेस कर दिया और हमने एक आपका पूरा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितनी दूर तक हो गया अब यहाँ पर आपका. सेकेंडरी में और भी बढ़ा दिया और टर्शरी में तो हमने न्यूक्लियोफाइल के लिए कोई स्पेस ही, तो ये तीनों ग्रुप जो प्रेजेंट है, ये ग्रुप हो या फिर ये आपको, ये तीनों इसकी अप्रोच को हिंडर कर रहे हैं ड्यू टू देयर प्रेजेंस. इसलिए जो SN2 रिएक्शन है वो सबसे तेजी से यहाँ होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके रिएक्टिविटी आपकी इस तरफ जाने से जो है वो घटती जाएगी. फाइन, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या होगा इसमें. अब बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म की. SN1 हम 2 हमने कर लिया, SN1 की हम पढ़ते हैं बात. SN1 जो रिएक्शन है आपका बेटा, तो दिस इज जनरली कैरीड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर है, एल्कोहल है, एसिटिक एसिड है आपका. द रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये आपने ले लिया यहाँ पर, तो ये रहा हमारे पास. इस प्रोडक्ट के साथ हम, इस रिएक्शन के साथ हम काम कर रहे हैं. एंड हाइड्रोक्साइड, ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे हमारे पास है. द टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल एंड फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर, जबकि SN2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों है आपका, मैं समझाती हूँ अभी. बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, दैट्स टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. क्यों ऐसा है ये भी मैं समझाऊंगी आपको अभी यहाँ पर. इट अकर्स इन 2 स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट वन. SN2 में एक ही स्टेप में रिएक्शन आपका कंप्लीट हो रहा था और इंटरमीडिएट कंपोनेंट बन रहा था वहां पे. यहाँ पर आपका 2 स्टेप में रिएक्शन होगी. स्टेप 1 में पहले देखते हैं क्या होता है. स्टेप 1, द पोलराइज
Br bond. They undergo slow cleavage to produce a carbocation. तो सबसे पहले SN1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, पहले कार्बोकेटायन बनेगा. Then carbocation formed is attacked by nucleophile in the second step and इससे आपका रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है. तो चलिए इसको समझाते हैं कि कैसे रिएक्शन हो रहा है. ये रहा आपका रिएक्शन, यहाँ पे OH है. OH कब यहाँ पे अटैक करेगा, तो सबसे पहले होगा क्या, ये होगा हमारा, दिस इज आपका स्टेप 1. आपका हमारे पास है ये स्टेप 1 में आपका ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है, रिएक्टेंट बना हुआ है. तो उस रिएक्टेंट को मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ आपके लिए. ये रहा. तो स्टेप 1 में सबसे पहला जो हमारा स्टेप 1 का काम है वो ये है कि आपका जो ये मॉलिक्यूल है, ये जो आपका एटम है यहाँ, इसको अलग हो जाना है. तो ये अलग रहा. अब ये जानते हो ये वाले बॉन्ड की जो मैं बात करूँ, ये कैसा बॉन्ड है, ये ओब्वियसली ये पोलर बॉन्ड है और ये नेगेटिव चार्ज के साथ इधर गया. तो यहाँ सेंटर में कैसा आपका ये रहा पॉजिटिव चार्ज आएगा और मैं इस ये सेम ये कार्बन आपका वाला है बच्चों. तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप कंपैरेटिवली स्लो स्टेप आपका होता है. अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल OH आपने डाला है, ये बहुत जल्दी से आके इधर अटैक करेगा और आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, यानी Br का रिप्लेसमेंट कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा Br को. ये रिएक्शन आपकी कैसी रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन आपकी अभी मैंने बताया आपको कैसा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. क्योंकि किस पे डिपेंड कर रही है, ये सिर्फ इसी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है बेटा, इसलिए दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कितने स्टेप में होगी, स्टेप 1 और स्टेप 2 में होगी. कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा और कोई लेटरल इन्वर्जन यहाँ पे नहीं है. अब थोड़ा सा आगे आते हैं, इसकी थियरी थोड़ा देखते हैं. जो स्टेप 1 है वो आपका स्लोएस्ट स्टेप है और आप जानते हैं और ये पढ़ भी चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में, स्लोएस्ट स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, राइट. विच इन्वॉल्व सबसे पहले CBr बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, मैंने बता दिया है आपको, and which energy is obtained through solvation of halide ion with the proton of protic solvent, since the rate of reaction depends on the slowest process. तो फर्स्ट प्रोसेस पे आपका डिपेंड करेगा रेट इसका. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन. फर्दर एक और चीज यहां पर ध्यान रखिए, तो एक तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, दूसरा ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ग्रेटर विल बी इट्स एज टू फॉर्मेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड. जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ज्यादा रिएक्शन रेट ज्यादा होगा, यानी ऐसा बोले तो जल्दी से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा. चलिए अब आगे देखते हैं. अब यहां पर क्या हुआ, इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड they undergo SN1 reaction very fast because of the highest stability of 3 डिग्री कार्बन. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से कार्बन होते हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 2 डिग्री आता है और उसके बाद 1 डिग्री आएगा. तो इस केस पे सबसे जल्दी या सबसे तेजी से रिएक्ट करने वाला होगा आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन. वी कैन सम अप विद दिस, ये हम पढ़ भी चुके हैं. देखिए इसको मैं वापस आपको SN2 में यहाँ पे कोई भी, जबकि आप यहाँ पे ये वाला सबसे देर से रिएक्शन देता है. सेम ये कौन सा कार्बन है यहाँ पर आपका, ये 3 डिग्री कार्बन है आपका. 3 डिग्री कार्बन सबसे तेजी से SN1 रिएक्शन देगा और रिवर्स में क्या हो जाता है उल्टा इसका, जो आपका सेम है वो किस में बेटा, आपका SN2 रिएक्शन में सबसे स्लो पार्टिसिपेंट है. चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा. ये हमने इसकी समरी सम करके दिया हुआ है यहाँ पर, ये दोनों. For the same reason, the allylic and benzylic halide, they show high reactivity towards SN1 reaction. Important है, याद रखिए. allylic और benzylic halide भी SN1 reaction preference में देंगे. The carbocation formed get stabilized through resonance form as given below. तो मैं डायग्राम के साथ आपको हेल्प कर देती हूँ कैसे ही करेगा.
तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किस किस की हमने लास्ट में बात की है। हमने सबसे पहले ये आपका एल्लाइलिक हमने देखा और आपका बेंजाइलिक देखा, तो हम उसी को यहाँ देख रहे हैं। ये रहा आपका कार्बोकेटायन, फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन यानी आपका रेजोनेटिंग फॉर्म से हैं दोनों, सेम हियर सेम कंडीशन, here in this they have the same resonating form. For a given alkyl group, the reactivity of alkyl halide is in this order. आपको ये ऑर्डर याद रखना है, alkyl with I, then Br, then Cl and then F. इस तरह से आपको SN1 और SN2 में डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है इसके अंदर, जो लर्न करना है वो ये बेटा कि आपको दोनों कितने स्टेप रिएक्शन है, कितना ऑर्डर रिएक्शन है, किस तरफ से न्यूक्लियोफाइल आपको अटैक करता है, उसके अटैचमेंट कैसी होनी है, वो सब आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ जाते हैं। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स वी हैव हियर व्हिच यू शुड नो। नाउ यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, आप देखते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ बात करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी अभी भी हमारा फोकस तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, लेकिन हम उसकी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट की बात करें। अब सबसे पहले ये क्या है और क्यों इसकी जरूरत हमें है और क्यों हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको। यहाँ पे दोनों का साथ साथ SN1 SN2 को साथ साथ कोरिलेट करते हुए जाएंगे और कुछ नई टर्म्स भी देखेंगे। टर्म्स जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन, ये सब टर्म्स की आपको मैं भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या क्या इनके मतलब है। यहाँ पर SN2 रिएक्शन इट प्रोसीड विद कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। SN2 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन है आपका, जबकि SN1 रिएक्शन इट प्रोसीड विद रेसिमाइजेशन। अब पहले अगर आपको टर्म्स नहीं पता है स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन का क्या मतलब है या रेसिमाइजेशन का, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे करके मैं ये सब एक्सप्लेन करती हूँ आप, लेकिन यहाँ पे फोकस करिए कि SN2 रिएक्शन रिलेटेड टू द स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन एंड SN1 इज विद रेसिमाइजेशन। नाउ सबसे पहले बात करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी मैं सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लेकर आपको चल रही हूँ और समझा रही हूँ। सर्टेन कंपाउंड, कुछ कंपाउंड्स हमारे पास, दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू अ निकोल प्रिज्म। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपके पास है, ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब इसमें हो क्या रहा है आपका, ये जो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये रहा इस तरह से है। अब आपने क्या किया, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया आपने निकोल प्रिज्म। तो वहां पर हुआ क्या, वहां से निकोल प्रिज्म से तो आ ही रहा है। अब आपने क्या किया, सब्सटेंस कोई भी कंपाउंड जिसकी आप एक्टिविटी जानना चाहते हैं, यू विल टेक द कंपाउंड एंड पास दिस लाइट थ्रू द कंपाउंड। अब क्या होगा, when it is passed through the solution, such compounds are called optical active compound। कि अगर यही plane polarized light after passing through the substance turn, यानी either right side आपका रोटेट हो जाती है या फिर और में भी आपका जो इसका रोटेशन है वो लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी भी तरफ हो जाता है, that point of time we can say this compound is optically active compound। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा है जो आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, मे बी राइट साइड और लेफ्ट साइड, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। सबसे पहले इतना सिर्फ अभी देखिए, द एंगल by which the plane polarized light is rotated and measured by an instrument, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर polarimeter। तो इंस्ट्रूमेंट through which we can find out or we can definitely calculate the angle of rotation। Now next is, if the compound rotate plane polarized light to right, that means clockwise rotation है, इस रोटेशन को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और राइट रोटेशन, एंड इसको डी फॉर्म भी लिखते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सब टर्म, अच्छे से करिएगा बेटा। एंड इंडिकेटिंग बाय प्लेसिंग अ पॉजिटिव चार्ज बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। तो आप
डी फॉर्म में, डेक्सरोटेटरी प्लस फॉर्म बिफोर डिग्री ऑफ रोटेशन आप लिखेंगे. इफ द लाइट इज रोटेटेड टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो गया अब आपका ये, द कंपाउंड सेट टू बी लेबोरेटरी और एल, or you can say the negative sign before the degree of rotation. Are we okay with this now? So such positive and negative isomers of compound, they are called optical isomers, and the phenomena is termed as optical isomerism. तो यही दोनों आपके पॉजिटिव नेगेटिव जो यानी आपका लेफ्ट रोटेटरी या राइट रोटेटरी है, यही एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, और जो फिनोमेना इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो इसमें सिर्फ आपको समझना था व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी, डेक्सरोटेटरी, लेबोरेटरी, डी एल प्लस माइनस फॉर्म, इन सब के मतलब क्या है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ. नाउ नेक्स्ट टर्म मैंने लिया यहाँ पर, दैट इज मॉलिक्यूलर asymmetry, chirality और enantiomers. ये भी 1 मार्क के लिए अच्छे से आपको कभी भी क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं. यू शुड नो दिस. इससे रिलेटेड कुछ इनकम्प्लीट डायग्राम्स भी आपको पूछ सकते हैं. The observation of Lewis Pasteur that crystals of certain compounds exist in the form of mirror images laid the foundation of the modern stereochemistry. उसने बोला कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं. मिरर इमेजेस होते हैं तो फिर कुछ और सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटीज भी हैं क्या? बिल्कुल, देखते हैं उसको अब. He demonstrated that aqueous solution of both type of crystals and showed the optical rotation. दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी उसने चेक की. It was equal in magnitude. बिल्कुल इक्वल थी, बट एक डिफरेंस जरूर था. एंड द डिफरेंस दैट फॉर द सोल्यूशन इज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन. ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर नहीं होगा तो रोटेशन एंगल चेंज हो सकता है बच्चों. इनका इक्वल मैग्नीट्यूड था, बट क्या डिफरेंस था? बट द डायरेक्शन वाज ऑपोजिट. तो फ्यू क्रिस्टल्स विद कैसी इमेज था? द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दे सिमिलर, they are showing definitely the optical rotation with equal magnitude. What the difference was, they were showing this into different direction or the opposite direction, you can say. He believed that this difference of the optical activity was associated with 3-dimensional arrangement of atoms, right? क्योंकि we all know this कि आपके जितने भी एटम अरेंजमेंट है वो 3D डायरेक्शन में है. उसने बोला हो सकता है ये जो ऑप्टिकल डिफरेंस आ रहा है डायरेक्शन का वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की वजह से ही है आपका. इन 2 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, देखिए क्या डिफरेंस. अब आपके डच साइंटिस्ट हुए जो के वॉन टॉफ एंड द फ्रेंच साइंटिस्ट ली बेल. In the same year, they independently argued in the same that simple arrangement of the 4 atoms. 4 atoms किस पर? Obviously carbons पर. Around a central carbon is tetrahedral. If all the substituents attached to the carbon are different, यानी जितने भी कार्बन है, कार्बन के चारों तरफ जितने भी आपके 4 ग्रुप्स हैं और चारों में से ग्रुप सिमिलर नहीं है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ऐसे कार्बन को बोला असिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर. असिमेट्रिक कार्बन क्यों बोला? क्योंकि चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है वहां पे. द asymmetry of molecule is responsible for optical activity in such organic compound. तो उसने बोला जो asymmetry है किसी भी कार्बन की, that phenomenon is responsible for optical activity of the compound, organic compound. The symmetry and asymmetry are also observed in many days to day objects. जैसे कुछ एग्जाम्पल है, sphere, a cube, a cone, all identical to their mirror images and can be superimposed. तो यहाँ से आपको सिर्फ इतना बताया था कि आपका असिमेट्रिक कार्बन क्या है और उसी को हम स्टीरियो सेंटर भी कह रहे हैं. यहाँ पर अगर कंपाउंड की मिरर इमेजेस हैं क्रिस्टल्स में, उन्होंने देखा तो उसमें क्या डिफरेंस मिला उन्हें मिला उनकी ऑप्टिकल रोटेशन में उन्हें डिफरेंस मिला. रेस्ट एवरीथिंग वाज सिमिलर.
नाउ नेक्स्ट, अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। देखिए, मेनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो सुपर इम्पोजेबल हो ही। चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, टेक योर एग्जाम्पल, योर लेफ्ट एंड योर राइट हैंड, दे लुक सिमिलर, बट इफ यू पुट योर लेफ्ट हैंड on your right hand, are they coincide? No. And the object which are not superimposable on their mirror images, very important, like a pair of hands, are said to chiral, and this property is known as the chirality. ओके, तो उसने बोला सारी जितनी भी आपकी मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, वो सुपर इम्पोज नहीं होते एक दूसरे पर। जैसे आपका ये रहा नॉन कायरल ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ये होते हैं, ये भी आपका सुपर इम्पोज देखिए हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है यहाँ पर। जबकि इस केस की अगर बात करें तो ये मिरर इमेजेस हैं, लेकिन अगर इनको सुपर इम्पोज करें तो ये कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होंगे। उस कंडीशन में उसको हमने टर्म दिया दैट्स द कायरल एंड द फिनोमेनन और द प्रॉपर्टीज कायरलिटी। While the objects which are superimposable on the mirror images, they are a chiral, तो हम इसकी अभी हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम chiral की बात कर रहे हैं। The above test of the molecular chirality can be applied to the organic molecule by constructing models and their mirror images on the drawing three-dimensional structure by attempting the superimpose in their own mind, right? Now आगे चलते थोड़ा सा। There are other aids, however, that can assist us in recognizing the chiral molecule. One such aid is the presence of a single asymmetric carbon atom. अब देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से हम यहाँ समझते हैं। लेट्स कंसीडर टू सिंपल मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं, प्रोपेन 2-ol एंड द ब्यूटेन 2-ol एंड देयर मिरर इमेजेस। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको पहले ये एक्सप्लेन कर देती। यहाँ पे क्या है देखिए, आपको सबसे पहले ये जो ऊपर वाला मैंने मॉलिक्यूल लिया है यहाँ पर, इसकी मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस केस में एज यू कैन सी क्लियरली द प्रोपेन 2-ol डज नॉट कंटेन एनी असिमेट्रिक कार्बन, बिकॉज हमें दिख रहा है दिस इज CH3, दिस इज CH3H एंड द OH ग्रुप डेफिनेटली सेम हियर CH3 राइट। तो इसमें हमें कहीं पर भी कार्बन ऐसा नहीं दिख रहा, असिमेट्रिक कार्बन नहीं दिख रहा है। as all four groups attach to tetrahedral carbon not different, तो अब आप कैसे हुआ that it's an achiral molecule। चलिए आगे आ जाते हैं हम। इस केस में यहाँ पे क्या है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है इन्होंने, C2H5 इथाइल मिथाइल H, सेम आपका बाकी में भी यही है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। Butane 2-ol has 4 different groups attached to the tetrahedral carbon and are expected to be chiral। कैसे देखेंगे ऐसे, आपको देखिए मैं बताया यहाँ पर C2H5, ये CH3, ये H आपका, ये कैसे हैं, सारे के सारे ग्रुप्स आपके ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसलिए इस कंडीशन में हमने इसको क्या बोला, इट्स अ chiral। Some common example of the chiral molecule आगे मैंने दे दिया यहाँ पर 2-chlorobutane, 2,3-dihydroxypropanol, ये आपका इसका स्ट्रक्चर हुआ, ये आगे इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा। Now important definition, stereoisomers related to each other, stereoisomers they are related to each other as non-superimposable mirror images, they are called enantiomers। अभी ओके, तो what are enantiomers? The stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images, they are called enantiomers। तो now आपको definition of enantiomers भी समझ आ गया होगा यहाँ से। चलिए जो enantiomers हैं, they possess identical physical properties, उनकी physical properties similar हैं, जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा, बट दे आर डिफरेंट। कब कैसे डिफरेंट है, इन रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इफ वन ऑफ द enantiomers इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो डेफिनेटली जो दूसरा वाला है वो
लेवो रोटेटरी होगा। तो अब इससे आपको क्या समझ आना चाहिए बेटा, इससे आपको समझ में जो आएगा वो ये है कायरल अकायरल। तो आपकी जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है वो किस कैटेगरी में हमने रख दिया उनको, अकायरल में। कायरल में कैसे हैं आपके, जो सुपर इम्पोज नहीं होती हैं, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होती हैं कायरल, और ये आपका नॉन कायरल में आपके सुपर इम्पोजेबल इमेज हो जाएंगे। फिर उसके बाद से मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है, तो ये अकायरल मॉलिक्यूल है, जबकि ये कायरल है सेकेंड वाले केस में, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे आपके डिफरेंट है। फिर आप आगे आ जाइए, ये एक आपका कायरल मॉलिक्यूल का मिरर इमेज यहाँ पे दिखाया है, ये इसका पिक्चराइजेशन है। नाउ एनिशियोमर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एनिशियोमर्स अब आप जानते हैं। अब आगे आ जाते हैं, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनिशियोमर्स इन इक्वल प्रपोर्शन। एक मिक्सचर आपके पास है जिसमें आपने एनिशियोमर्स को रखा है, दोनों एनिशियोमर्स का प्रॉपर्टी क्या है, उनका डिग्री ऑफ रोटेशन ऑपोजिट है। अब दोनों एनिशियोमर्स को आपने इक्वल प्रोपोर्शन, ये याद रखना है आपको, इक्वल प्रोपोर्शन में रखा है, देन दे विल हैव 0 ऑप्टिकल रोटेशन। क्यों? क्योंकि एक एनिशियोमर दूसरे एनिशियोमर के रोटेशन को कैंसिल कर देगा और नलीफाई कर देगा। As the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation due to the other isomers, and ऐसा मिक्सचर, सबसे पहले कंडीशन आपको ये इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों एनिशियोमर्स ले रहे हैं याद रखना है, और उसका क्या, आपका ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल करेंगे। तो सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड रेशमिक मिक्सचर एंड रेशमिक मॉडिफिकेशन। एक ही बात है, अ रेशमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्सिंग DL डेक्स्ट्रोलेवो प्लस माइनस बिफोर द नेम। तो अगर कहीं पे ऐसा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना बच्चों, तो वो रेशमिक मिक्सचर है, ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना वो लेवो रोटेटरी है, लेकिन वो उसमें पर उसका जो इफेक्ट है वो 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस ब्यूटेनट्यूऑल as the process of conversion of enantiomers into a racemic mixture is known as racemization. The process of converting into a racemic mixture is called the racemization. Now you know the racemic mixture एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दोनों enantiomers equal proportion में है, और उस टाइम पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ऑप्टिकल रोटेशन वहां पे 0 होना है। अब थोड़ा सा आगे मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ एक और प्रॉपर्टी आपकी रिटेंशन। इसका क्या मतलब, वो रिटेंशन से बिल्कुल आपको सही समझ आ रहा है कि रिटेन रहेगा, लेकिन क्या रिटेन रहेगा आपका वो मैं यहाँ बता देती हूँ। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ एन इंटीग्रिटी ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन असिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन और यू कैन से ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, देखिए, इन द गिवन कॉन्फिगरेशनल करेक्शन कोरिलेशन व्हेन अ केमिकल स्पीशीज हमने लिया XCABC, तो ये आपका X है यहाँ पे, ये कार्बन है यहाँ पे, आपका ABC ये यहाँ पर है, दैट कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल स्पीशीज, किस में कन्वर्ट हो रहा है, YCABC। तो ये आपका Y, ये आपका C, ये आपका ABC यहाँ पर हुआ। देर हैविंग द सेम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं। देखिए आपका प्रोसेस पूरा हो गया, ये जो आपका X है यहाँ पर, ये किससे आपका रिप्लेस हो गया, Y यहाँ पर आ गया है, लेकिन बाकी का जो कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट है इसमें कहीं चेंज आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल भी चेंज नजर नहीं आ रहा है। दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन इज एक्चुअली दिस रिटेंशन। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देती हूँ। इन जनरल इफ ड्यूरिंग अ रिएक्शन नो बॉन्ड टू स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, है ना, वहां पे कोई आपका जो ड्यूरिंग रिएक्शन नो बॉन्ड ब्रोकन, कहां पर स्टीरियो सेंटर में बता चुकी हूं आपको। द प्रोडक्ट विल हैव द सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप अराउंड द स्टीरियो सेंटर इन द रिएक्टेंट। देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छे से समझाया है, ये आपका मिथाइल ब्यूटेन वर्नॉल, ये सिंबल्स के मतलब सब पता है आपको। यहाँ पे एक OH ग्रुप आपका अटैच्ड है बेटा, यहाँ पे HCl रिएक्शन में है। तो अब देखिए कितना अच्छे से ये जो आपका H है ये इसको यहाँ से बाहर निकालेगा, और जो कार्बन यहाँ प्रेजेंट है वो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो कार्बन यहाँ से
इसका प्लेस ले लेगा, देखिए बिल्कुल बिना किसी चेंज के, जबकि इस ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी कहीं पर चेंज आपका नहीं आया है। तो इस तरह की जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ बोलते हैं, देखिए इसमें बिल्कुल सेम वही है, सिर्फ अरेंजमेंट में डिफरेंस अगर है तो यहाँ पर OH और यहाँ पर Cl, सिर्फ इसका डिफरेंस आपको नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये भी आपको अच्छे से करना है, ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाती हूँ तो कुछ और नई टर्म्स मेरे पास हैं आपको समझाने के लिए, मैं उसके साथ आपका काम करती हूँ यहाँ पे। तो ये आपकी प्रोसेस पे आ जाती है इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। देखिए ये सब आप कर चुके हो, अब एक ही में कोरिलेट करके बताया है कि किस तरह से ये दोनों आपकी तीनों जो टर्म्स हैं वो कैसे रिलेटेड हैं आपके। देयर आर 3 आउटकम्स फॉर अ रिएक्शन at asymmetric carbon atom. Consider the replacement of group X by Y. पूरी रिएक्शन में X का आपका जो रिप्लेसमेंट है, ये जो X यहाँ गिवन है, ये देखिए सब में इसका रिप्लेसमेंट Y से ही हो रहा है। लेकिन देखिए आपको खुद ही अब पता चल जाएगा, इस केस की अगर मैं बात करती हूँ, यानी मैं सबसे पहले A की बात करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, X किस में कन्वर्ट हो गया, Y में हो गया, लेकिन बाकी सब कुछ वैसे रहा। तो ये किसका पार्ट था, ये रिटेंशन था। तो A सिर्फ अगर एक रिएक्शन, यानी मैं इतनी रिएक्शन की अगर बात करती हूँ, सिर्फ इतनी रिएक्शन आपकी हो रही है, तो उसको मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे, उसको मैं बोलूंगी दिस प्रोसेस इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब B पर आ जाते हैं कि अगर सिर्फ B हो रहा है तब क्या मैं बोलूंगी, सिर्फ B में ये आपका देखिए चेंज, लेकिन एक चेंज है यहाँ पे जो साइड ये कार्बन है, तो कार्बन का ये साइड, लेकिन यहाँ Y अदर साइड में आ गया, तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, राइट है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो इस केस की अगर बात करती हूँ मैं B की, तो ये आपका यहाँ पर है, क्या है आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, राइट है यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा आ जाते हैं नीचे कि आपका जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसमें से A और B फॉर्म हुआ है, राइट लेकिन A और B का इक्विमोलर मेरे पास जो है वो सोल्यूशन बना। इफ 50-50 मिक्सचर ऑफ द अबव टू ऑब्टेन, द प्रोसेस इज कॉल्ड, बताया मैंने आपको, रेसिमाइजेशन है। एंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों होगा इसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक ही में तीनों आपका इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन, ये आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट आपका है ही नहीं। नाउ अब फिर से एक नई आपकी तरीके से हमें देख लेते हैं। नाउ लेट्स फ्रेश लुक ऑन SN1 and SN2 mechanism by taking an example of optical activity और alkyl halide। कैसे हम इसमें कर रहे हैं, तो अभी आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत छोटे से मैं आपको यहाँ टाइम लेके एक्सप्लेन करूंगी। In case of an optically active halide, the product formed as a result of SN2. SN2 में क्या था, lateral inversion था ना वहां पे देखो, तो mechanism has inverted configuration as comparative to reactant। जो reactant लिया था उसका laterally inverted product आपका मिलता है, because the nucleophile they attack itself on the side opposite to the halogen atom present। उसके पीछे से अटैक करता है, इसलिए ऐसा है। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट यहाँ पे, तो ये यहां से अटैक नहीं कर पाएगा, ये इस रास्ते से नहीं जा पाएगा, इसको जाने के लिए यहीं का रूट फॉलो करना है, ये सही है आपका पाथ। तो ये हमें लेटरली इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गया। तो इससे मैं ये बोल सकती हूँ, आई कैन से दैट द ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स आर कंपेटेड बाय द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये SN2 की बात हुई, चलिए थोड़ी सी और आगे बात बढ़ाते हैं और SN1 के बारे में बात करते हैं। इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड, यानी मैं SN1 की यहाँ बात कर रही हूँ, द रिएक्शन आर दिस कंबाइंड बाय एंड रेसिमाइजेशन। SN1 में ये रेसिमाइजेशन क्यों है ना, रेसिमाइजेशन की जगह कुछ और क्यों नहीं है, तो उसके लिए समझा देते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई सो, आई विल एक्सप्लेन इट। एक्चुअली इसको इससे एक्सप्लेन करती हूँ। ये आप देखिए यहाँ पे SN1 में सबसे पहले कार्बोकेटायन बनता है ना, तो कार्बोकेटायन बन गया यहाँ पे, लेकिन कार्बोकेटायन में अब जो अवेलेबिलिटी है न्यूक्लियोफाइल की, यानी जो आपका OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ इस साइड से भी अटैक कर सकता है, लेकिन उसको इस साइड से अटैक करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो जो इस साइड से अटैक करेगा वो प्रोडक्ट में आपका क्या फॉर्म करेगा, देखिए मैंने नीचे यहाँ दिखाया भी है, ये रहा आपका कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, इस साइड से आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है, और यहाँ पर आपका ये इधर साइड से अटैक करेगा तो आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है। दोनों प्रोडक्ट आपके यहाँ बन रहे हैं इक्विमोलर में, तो इसलिए SN1 रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पर आपका रेसिमाइजेशन होगा। नाउ एक्चुअली द कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इज अ स्लो स्टेप, ये भी पहले आपको मैं बता चुकी हूँ यहाँ पर। एंड द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल मे बी आइदर साइड, दोनों में से किसी साइड से भी हो सकता है, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। आर वी ओके विद दिस? एंड द मिक्सचर इज कॉल्ड द रेसमिक मिक्सचर, दैट इज वाई यहाँ पर आपका जो बनेगा वो रेसिमाइजेशन प्रोसेस फॉलो होगा और रेसमिक मिक्सचर बनेगा। जैसा कि यहाँ आपको नजर आ रहा है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी होगी और थोड़ा प्रोडक्ट आपका ऐसा होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और सेकंड टाइप, यानी यहाँ पर हमने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, देन उसके बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन, देन पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यू हैव सम डाउट्स, यू कैन अगेन सी दिस वीडियो, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नाउ सेकंड मैं बात करती हूँ, तो मैं यहाँ बात करूंगी अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या मतलब यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन का है बच्चों? When an haloalkane with a beta hydroxy atom is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, अब इसकी बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड आपका प्रेजेंट है, ये जो कंपाउंड आपका, ये आपका हैलोजन है, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये जो कार्बन है ये आपका यहाँ बीटा कार्बन हो गया। इस पर जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो आपका ऑब्वियसली बीटा हाइड्रोजन हो गया आपका। तो अगर मैं बीटा हाइड्रोजन एटम हीट करती हूँ अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH के साथ में यहाँ पर, देन देयर इज एन एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बीटा कार्बन एंड हैलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन. As a result, alkene is formed as a product. Since beta hydrogen carbon involved in the elimination, the process is known as the बीटा एलिमिनेशन. मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा भी लिख सकती हूं कि ये मेरे पास ये कंपाउंड राइट, ये हाइड्रोजन मेरे पास है, ये वाला हाइड्रोजन मैं यहां बना रही हूं और ये हैलोजन है, ये इस तरह से बाहर आ जाता है. ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा इस केस में, फिर आपका प्रोडक्ट तो ऊपर ये बनाइए, ये बन जाएगा प्लस आपका जो भी. चलिए अब यहां से ये दोनों, ये इधर निकल गया, ये भी सेपरेट हो गया और आपका प्रोडक्ट ये फॉर्म हो गया. बिकॉज इन्वॉल्वमेंट किसकी है, बीटा हाइड्रोजन एटम की है, तो इसलिए हम यहां बोलेंगे इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. थोड़ा सा आगे जाते हैं और एक्चुअल रिएक्शन देखते हैं यहां पर. Now if we'll explain this कि अगर आपके पास फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन है, ठीक है, मोर देन वन एल्कीन किस केस में कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका, कौन सा माइनर बनेगा, दैट विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेज़िफ रूल और विच इज गिवन बाय द रशियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर सेरेफ. एंड क्या रूल था, रूल इज इन द हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन the preferred product is that alkene, वो मेजर बनेगी which has greater number of alkyl group attached to the double bonded carbon atom. This example there, 2-bromopentane, it gives pentene 2N as a major product. ऐसे देखिए हमें यहाँ दिख रहा है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट 19% और ये आपका 81% हुआ. Now students, I'll explain you एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले एलिमिनेशन कब हो, सब्स्टिट्यूशन कब हो और दोनों क्यों हो, ये मैं आपको बता देती हूँ. अ केमिकल रिएक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड इट्स अ रेस दैट इज वन बाय अ फास्टेस्ट रनर. अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेंड टू डू बाय द लार्ज व्हाट इज इजीएस्ट फॉर देम. अब बाय एंड लार्ज में सबसे आसान क्या है उनके लिए, वो उस तरह से काम करते हैं. जैसे एक एग्जांपल समझते हैं. एल्काइल हैलाइड विद अल्फा हाइड्रोजन एटम व्हेन रिएक्टेड
with base or a nucleophile has two competing routes. कौन से दो रूट है उनके पास? एक तो सब्स्टिट्यूशन और दूसरा रूट है उनके पास एलिमिनेशन. Which route will be taken depends upon, किस किस चीज पे वो डिपेंड करता है? नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, स्ट्रेंथ, साइज ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्शन कंडीशंस. अब यहाँ देखिए इसके स्पेसिफिक इसके बारे में बात करते हैं. A bulkier nucleophile will prefer to act with a base and abstract a proton rather than approaching the tetravalent carbon. किसकी वजह से अप्रोच नहीं कर रहा है? ये मैं सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ड्यू टू द स्टेरिक रीजन एंड वाइस वर्सा. सिंपल. Similarly, a primary alkyl halide will prefer a SN2 reaction, a secondary halide or elimination depends upon the strength of base and nucleophile and tertiary halide. SN1 or elimination that depends upon the stability of carbocation and the more substituted alkene. तो ये सब फैक्टर्स हैं कब एलिमिनेशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो. ये देखिए आपको एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिखाया हुआ है. ये देखिए स्टेरिक एंट्रेंस तो ये इसको अप्रोच करेगा और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा जबकि ये इसको एलिमिनेट करेगा प्रोसेस को दोनों को. अब आगे आ जाते हैं और रिएक्शन ये थर्ड आपका है बेटा. दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ the chemical reactivity, about the chemical reactivity of haloalkanes. Arenes we'll do later. Now most organic compound of bromide, iodide, they react with certain metals to give compound containing carbon metal bond. और ऐसे जो compounds आपके बन जाते हैं उनको हम बोलते हैं organometallic compound. जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो डिस्कवर किया था वो किया था मिस्टर विक्टर ग्रिग्नार्ड in 1900 is alkyl magnesium halide RMgX. very famous और बहुत बार यूज होगा बेटा ये. It is referred as the Grignard reagent. तो कहीं पर भी अगर हम बात करेंगे ग्रिग्नार्ड reagent की तो हम इसके बारे में बात करेंगे. So if we discuss about Grignard reagent, for sure we'll discuss our RMgX, and these reagents obtained by the reaction of haloalkane with magnesium metal in dry ether. तो ये रहा आपका. What is this? Haloalkane. This is magnesium metal in presence of dry ether and the formation of Grignard reagent. चलिए देखते हैं. In the Grignard reagent, the carbon magnesium bond is a covalent, but it's highly polar bond. With carbon pulling electron from electropositive magnesium. यहाँ पे ये दो जो आपका मैग्नीशियम है ये कैसा है नेचर में? यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस तरफ शिफ्ट हुआ? यहाँ इस तरफ शिफ्ट हुआ. तो ये स्लाइटली नेगेटिव आपका हो गया. राइट यहाँ तक. एंड मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड इज एसेंशियली आयोनिक बॉन्ड. ये हमें यहाँ दिख रहा है. इट इज आयोनिक बॉन्ड. Grignard reagent is highly reactive and react with any source of proton. Very important, any source of proton to give hydrocarbon and even water, alcohol, and amines are sufficiently acidic to convert it the corresponding hydrocarbon. ये रहा आपका even water. Important one क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन इस पे पूछते हैं कई बार. तो ये आपका यहाँ पर बनेगा एल्केन. ये आपका एल्केन हो गया यहाँ पर और ये साथ में आपका बन गया MgOH और XA कंपाउंड. तो therefore it's very necessary to avoid even trace of moisture from Grignard reagent. And on the other hand, it could be considered as one of the method for converting halide to hydrocarbon. ये मैंने आपको यहाँ बताया और इसके आगे भी हम इस मेथड को बहुत बार यूज करने वाले हैं. The last reaction of this particular portion is Woods reaction. Alkyl halide react with sodium in dry ether to give hydrocarbon. They contain double in number of the carbon atoms present in halide. This reaction is known as the Woods reaction. So again, this is very important name reaction here.
क्यों ऐसा बोला कि डबल नंबर का बनेगा? तो देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड लिया है आपने, इसको ऐसे RX, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप Na, देन अगेन मैं इसको ऐसा लिख देती हूँ। तो इन दैट वेज जो आपका जो कंपाउंड ये बनने वाला है एल्केन, तो ये रहा आपका R और साथ में बना यहाँ पर आपका NaX। तो डबल हुआ ना, देखिए एक एल्काइल ग्रुप वाला लिया आपने और जो बना एल्केन वो आपका डबल नंबर वाला, यानी डबल उसके एल्काइल ग्रुप वाला कंपाउंड आपका फॉर्म हो गया यहाँ पर। तो ये वुड्स रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस एंड ऑल है, डेफिनेटली मैं आपको करवाऊंगी। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, really important, SN1, SN2 reactions, their mechanisms, elimination reaction with metals, everything was very important. एक बार आपने मेरे साथ for sure कर लिया, एक बार फिर से उसको रिवाइज करिए, and I'm very sure and confident you will able to solve each and every question given in the sample papers or wherever it is. Fine. तो जल्दी मैं आपको फिर से मिलती हूँ with another lecture. All the best. Thank you.